क्लास 9th बेटा अज असी करांगे चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.1 क्लीयर। ਇਹਦੀ एक ही एक्सरसाइज इस बार सिलेबस ਵਿੱਚ ਆ। सिर्फ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਣਾਉਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣੇ। ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ 90 ਡਿਗਰੀ at the initial point of a given ray and justify the construction। ਜਸਟੀਫਾਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਗਲ ਆ ਕੰਸਟਰਕਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ? ਫਸਟ ਸਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਮ ਆ ਓ ਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਓ ਤੇ ਏ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਡਰਾ ਅ ਰੇ ਓ ਏ। ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆ? with O as center, O ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨੋ। with O as center and any radius, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਲਓ। any ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੋਲ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੋਲੀ, ਐਂਗਲ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸੌਰੀ ਰੇ ਡਰਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦ ਓ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰ, ਓ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਡਰਾ ਐਨ ਆਰਕ। ਕਿਹੜੀ ਆਰਕ ਲਈ ਆਪਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਆਰਕ ਲਈ ਬੇਟਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਐਮ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਓ ਐਲ। ਐਮ ਐਲ ਆਰਕ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਮ ਐਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਏ ਬੀ ਲਓ। ਸਿੰਪਲ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਰਕ ਕਿਹੜੀ ਲਓ? ਏ ਬੀ। ਹੁਣ ਬੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨੋ। ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਨਾਓ ਵਿਦ ਬੀ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰ, ਬੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਐਂਡ ਸੇਮ ਰੇਡੀਅਸ। ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਉਨੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਆ। ਡਰਾ ਐਨ ਆਰਕ cutting the arc AB at point C। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਨੀ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਆ, ਬੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਰਕ ਲਾਉਣੀ ਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿਓ? ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ 4 ਸਟੈਪ ਆਲਸੋ ਟੇਕ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪੀ ਐਜ਼ ਸੌਰੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰ, ਸੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਸੇਮ ਰੇਡੀਅਸ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਸੇਮ ਰੇਡੀਅਸ ਡਰਾ ਐਨ ਆਰਕ ਕਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਸੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਮੰਨੋ, ਸੀ ਏ ਸੀ, ਕਟਿੰਗ ਏ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਏ। ਕਟਿੰਗ ਏ ਸੀ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਰੇਡੀਅਸ। ਇੱਕ ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਏ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ? ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ? ਪੁਆਇੰਟ ਡੀ 'ਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੇਕ ਸੀ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਲਿਖੋ ਟੇਕ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਮੰਨੋ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਡਰਾ ਆਰਕਸ। 2 ਆਰਕ ਡਰਾ ਕਰੋ ਵਿਚ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ? ਸੀ ਡੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੇਖੋ
सी ते प्रकार रखी आर्क लाओ, इत्थे प्रकार रखी रेडियस उन्ना ही आर्क लाती, फिर डी ते रखी आर्क लाती, दिस वन एक दूजे नूं कट कर गई किहड़े पॉइंट ते ई ते, विच इंटरसैक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। ठीक आ, जॉइन ओ ई, अगला स्टैप ओ ते ई नूं की कर दो जॉइन। छेवां स्टैप आ जॉइन ओ ई, ओ ते ई नूं की कर दो जॉइन कर दो। सतवां स्टैप आ एंगल ई ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ ई ओ बी की आ 90 डिग्री, सो ई ओ बी इज़ दी रिक्वायर्ड एंगल। ई ओ बी की आ साडे कोल एक्चुअली एंगल आ जिहड़ा आपां फाइंड आउट करना है। क्लीयर बेटा, ये एंगल बन गया 90 डिग्री का, ये ही सम नंबर 1। ठीक है जी, ये तुसीं प्रकार नाल ही बनाउणा आ। सेम कंस्ट्रक्शन मतलब याद नहीं करनी, इहदा मतलब यह आ कि तुसीं जिहड़ी जिहड़ी लाइन ड्रॉ करी जा रहे जे एज इट इज़ लिखी जाओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ग्रैमेटिकल मिसटेक नहीं काउंट करती, कोई ये नहीं करता तुसीं किवें लिखी लाइन सेम नहीं लिखी, कुछ भी सेम लिखण की लोड़ नहीं है। अगे क्वेश्चन नंबर 2 वेखो, किन्ने डिग्री का एंगल 45 का। हुण वेखो 45 का एंगल किद्दां बनाउणा है। मैं लाइन ड्रॉ की, ठीक आ, पहला मैं 90 डिग्री का एंगल बनाया सेम ही, ओ ए बी सी डी, आर्क्स लगाइया, हाथ ना नहीं लाउणी किसी ने भी आर्क, ये ना होवे कि हाथ नाल आर्क लाई जाओ। ठीक है, ये पूरा पता लग जाता है। इत्थों तक मैं बना लिया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, सारी एंगल बना के इत्थों तक कंस्ट्रक्शन सेम लिखनी है, इत्थों तक कंस्ट्रक्शन सेम लिखनी है। हुण 90 का हाफ कितना हुंदा आ 45, बेटा 90 का हाफ कितना हुंदा आ 45। इत्थे इत्थों तक 7वें स्टैप तो मगरों 8वां स्टैप, आ सारे लिखने आ दोबारा। 8वां स्टैप की लिखोगे बाइसैक्ट एंगल, एंगल ई ओ बी, जिहड़ा एंगल ई ओ बी आ इनू बाइसैक्ट कर दो। बाइसैक्ट का मतलब 2 पार्ट्स विच की कर दो डिवाइड कर दो। ठीक आ, ई ओ बी एंगल नूं की कर दो बाइसैक्ट। बाइसैक्ट किद्दां करना है, इत्थे प्रकार रखनी है, मेरे को हैगी भी है शायद। वेखो बाइसैक्ट एंगल किवें करना है, आ एंगल ही ई ओ बी प्रकार रखी दिस वन, ए इदां इन्नी प्रकार खोल ली बेटा, खुल गई। आ देखो आ एंगल ही 90 का, इन्नी प्रकार खोल ली जिन्ना एंगल आ। इत्थे बी ते रख के आर्क ला दो, ये लगती नहीं पई सॉरी। ठीक है, तो इत्थे आ वाले पॉइंट ते रख के भी आर्क ला दो, लगाती आर्क। इन्नी नीट एंड क्लीन आर्क लाउणी आ, कोई मोटिया मोटिया लाइनस नहीं लाउणियां। फिर इनू स्केल नाल बेटा जॉइन करना, आपां इनू स्केल नाल जॉइन करना आ, इनू स्केल नाल ही करना, मैं हत्थ नाल करदी पई आ। इहदा नाम रख लो एफ। बाइसैक्ट एंगल ई ओ बी किहड़े पॉइंट ते आ गया एफ ते। ठीक है, सो एफ ओ बी एंगल जिहड़ा आ 45 डिग्री का है। क्लीयर बेटा, हाँ जी। अगे आ वेखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट तो मैं दसदी हाँ, सैकेंड वेखो 22.5। 22.5 की हुंदा आ 45 नूं हाफ नाल डिवाइड करो तो कितना होगा 2 नाल 22.5। इहदा मतलब जदों मैं 22.5 करना है थर्ड का सैकेंड सम 22.5 डिग्री, तुसीं एक च नहीं करना, तुसीं सारे अलग करने हैं। इत्थों शुरू होना सम, सारी कंस्ट्रक्शन लिखनी, पहला 90 डिग्री का एंगल बना लिया, फिर इनू बाइसैक्ट करता तो कितने डिग्री का बनाया 45 का। इस तो अगे 9वां स्टैप लिखना आ बाइसैक्ट एंगल एफ ओ बी। बाइसैक्ट एंगल एफ ओ बी, जदों एफ ओ बी नूं बाइसैक्ट किया तो किद्दां करांगे, बी ते रखांगे प्रकार ते इत्थों तक खोलांगे, है ना। इत्थे प्रकार रखी आर्क लाई, इत्थे प्रकार रखी आर्क लाई, दिस वन ये कितने डिग्री का एंगल आ गया 22.5 डिग्री का। सो एंगल एफ ओ बी के बराबर है 22.5 डिग्री। ठीक है पुत्त जी, हाँ जी, इत्थों तक कर लिया।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ एंगल बनाना आ 30 डिग्री का 30 डिग्री का एंगल किमें आप ड्रॉ करांगे। देखो कोई एक इहदे बेटा कंस्ट्रक्शन तुसीं हुण आपे लैनी है। थर्ड का मैं फस्ट सम कराउण लगी हाँ। दिस वन लाइन लई मान लो ओ ही नाम हुण तुसीं आपे लिख लो, मैं तुहानूं सिर्फ एंगल ही ड्रॉ करके आर्क लगाई उदां ही मान लो ए पॉइंट ते ਇੱਥੇ रखी प्रकार ओने नाल ही जिहड़ा ही एंगल ड्रॉ किया ये किन्ने डिग्री का आ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ वैसे जिन्ना आपां रेडियस लिया ਇੱਥੇ प्रकार रखी पहली आर्क लाई जिन्ना एंगल आया वो किन्ने डिग्री का आ 60 का। ठीक है हुण 30 का किद्दां होऊगा ਇੱਥੇ प्रकार रखो इत्थों तक खोलो इनू बाईसैक्ट कर दो ए ते रखी आ लगाई आ वाला पॉइंट मान लो बी इत्ते रखी आ लगी ये किन्ने डिग्री का एंगल आ गया पुत्त जी 30 का। ਇਹਦਾ नाम रख लो सी ਇਹਦਾ नाम की रख लो सी। हुण 15 डिग्री का जे एंगल बनाना आ तो 30 नूं अद्धा कर दो 30 नूं हाफ किद्दां करांगे इनू बाईसैक्ट कर दांगे ए ते प्रकार रखी तो सी ते रखी दिस वन ये किन्ने डिग्री का सम आ गया सॉरी किन्ने डिग्री का एंगल आ गया बेटा अपने कोल 15 किन्ने डिग्री का आ गया 15। अगे 75 का एंगल किद्दां होगा वेखो 90 का एंगल बना लिया आ 60 का आ 90 का आ 60 विच किन्ने प्लस करा तो 75 होंदे आ 15 है ना। तो आ किन्ने डिग्री का एंगल आ 60 तो 90 दे विच 30 का तो जे मैं आ एंगल नूं बाईसैक्ट कर दूँगी तो 15 का एंगल आ जाऊगा तो 60 तो 15 75 मैं बाईसैक्ट करूँगी इन्ने एंगल नूं इत्थे प्रकार रखूँगी इत्थों तक खोलूँगी ਇੱਥੇ रखूँगी आर्क फिर ਇੱਥੇ रख के आर्क दिस वन आ एंगल किन्ने डिग्री का आ गया बेटा 75 का। इदां ही सारे एंगल बनाने जिहड़े बाकी रह गए। ठीक है जी बेटा ये तुसीं पहले 4 पार्ट एज इट इज़ ही कर लैने एंगल ही ड्रॉ करने आ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कहता कंस्ट्रक्ट एन इक्वीलेटरल ट्राईएंगल। इक्वीलेटरल ट्राईएंगल किहड़ी हुंदी आ जिहदियां सारियां साइडां की होण इक्वल गिवन इट्स साइड कोई भी साइड ले लो ठीक है गिवन आ तो जस्टिफाई दी कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन नूं की करो जस्टिफाई करो। ठीक है देखो ये पहला तुसीं बनाउणी आ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर की हो गया 6 क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। सब तो पहले एक लाइन ड्रॉ करो मान लो मैं लाइन ड्रॉ की बी सी जो करी जाते ना वो लिखी भी जाओ की लिखोगे ड्रॉ अ लाइन सैगमेंट बी सी मान लो मैं 5 सेंटीमीटर लिया कितने सेंटीमीटर लिया 5। हुण इक्वीलेटरल ट्राईएंगल करनी है ना ड्रॉ आप लिखो एट बी पॉइंट ते ड्रॉ करो एंगल बी ते रख के एक एंगल ड्रॉ करो 60 डिग्री का इदा करांगे दिस वन ये एंगल कितने डिग्री का होया क्योंकि आपां नूं पता ना कि इक्वीलेटरल ट्राईएंगल का एंगल कितने डिग्री का हुंदा है 60 का इस करके मैं आप ही 60 डिग्री का ले लिया बेटा ਇਹਦਾ नाम ठीक है ਇਹਦਾ नाम ले लो एक्स पूरी लंबी दी लंबी लाइन इनू ले लो कि एक्स एंगल एक्स बी सी कितने डिग्री बेटा 60 डिग्री। अगे थर्ड आ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाईसैक्टर मान लो आ लाइन के उत्ते मैं परपेंडिकुलर बाईसैक्टर ड्रॉ करना बी सी का परपेंडिकुलर बाईसैक्टर ड्रॉ किद्दां करांगे जिन्नियां लाइन हाफ तो वध प्रकार खोल लो ठीक है हाफ तो वध मान लो इत्थों लैके इत्थों तक प्रकार खोल ली बी ते रखो आर्क ऊपर भी लाओ तो नीचे भी लाओ फिर सी ते रखो आर्क ऊपर भी लाओ तो नीचे भी लाओ इनू ड्रॉ कर दो इनू की कर दो जॉइन कर दो ਇਹਦਾ नाम रख लो एक का रख लो पी दूजे का की रख लो क्यू। ठीक है की लिखोगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाईसैक्टर पी क्यू केड़ी लाइन का ऑफ लाइन बी सी। ठीक है हाँ जी ये जिहड़ा लाइन आए बी सी के किहड़े पॉइंट ते इंटरसैक्ट करती पई आ डी ते। ठीक है हुण की करोगे जॉइन ये लिखो इत्थे एक होर लाइन लिख लो लैट
इत्थे लिख लो पॉइंट ए, इत्थे किहड़ा पॉइंट लिख लो बेटा ए, ठीक है। की लिखोगे लैट ए एंड डी बी दी पॉइंट्स, कहंदा ये दो पॉइंट आ जिथे पी क्यू इंटरसैक्ट करदी आ बी सी नूं एंड इत्थे करदी आ बी एक्स नूं, सॉरी, ते दूजी ते करदी आ बी सी नूं, ठीक है। वो तो मगरों ए ते सी नूं मिला दो, ए ते सी नूं की कर दो, मिला दो, जॉइन ए सी, ठीक है। लिखो सो ए बी सी जी ट्राईएंगल आ इज़ एन इक्वीलेटरल ट्राईएंगल। ये कि ट्राईएंगल आ इक्वीलेटरल ट्राईएंगल। अगे उन्हें क्या ही जस्टिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन भी दो भी ये किद्दां बनी, ये कल्ले दी जस्टिफिकेशन कर लो, ठीक है। हुण मेरे को ट्राईएंगल आ ए बी डी ते दूजी किहड़ी आ ए सी डी, दोवें ट्राईएंगल्स लैके चलो। इन ट्राईएंगल ए बी डी ते दूजी किहड़ी आ बेटा ए सी डी। सब तो पहली चीज़ आ परपेंडिकुलर बाईसैक्टर ड्रॉ किया है तो कितने डिग्री का आ 90 डिग्री का, ठीक है। परपेंडिक ते आ साइड ये बराबर आ गई। सब तो पहला की लिखूँगी बी डी इक्वल टू सी डी, ये असीं कंस्ट्रक्शन च कीता परपेंडिकुलर बाईसैक्टर, ते एंगल ए डी बी के बराबर आ ए डी सी दोवें 90 डिग्री दे, 90 डिग्री दे आ। थर्ड वन ए डी इक्वल टू ए डी, केड़ा रूल लगा, केड़ा रूल लगा, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल ट्राईएंगल ए बी डी किहदे कॉन्ग्रेंट आ गई ए सी डी दे। जेकर कॉन्ग्रेंट आ गई ਇਹਦਾ मतलब बाकी सारे एंगल ते सारियां साइडां की होणगियां इक्वल, ਇਹਦਾ मतलब एंगल बी किहदे बराबर हो जाऊगा एंगल सी दे, ਇਹਦਾ मतलब एंगल बी किहदे बराबर हो जाऊगा एंगल सी दे बाय सी पी सी टी। तो हुण एंगल बी आपां किन्ने डिग्री दा लैके चले हाँ 60 का, एंगल बी 60 का आ, सो एंगल सी भी किहदे बराबर हो जाऊगा 60 का। हुण ए बी सी एक ट्राईएंगल आ ते ट्राईएंगल के तीनों एंगल्स का सम किहदे इक्वल हुंदा आ 180 डिग्री का। लिखो बिकॉज ए बी सी इज़ अ ट्राईएंगल सो एंगल ए ते एंगल बी एंगल सी किहदे बराबर आ 180 बिकॉज sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। ए मैं फाइंड करनी आ बी 60 आ सी भी 60 आ 180 आ गया, ए के बराबर आ गया 180, 60 + 60 120, ਇਹਦਾ मतलब एंगल ए आ गया मेरे को 60 डिग्री, ਇਹਦਾ मतलब एंगल मेरे को की आ गया 60 डिग्री, ठीक है। फिर की लिखोगे ईच एंगल ऑफ आ ट्राईएंगल, तीनों एंगल कितने डिग्री दे आ 60 डिग्री दे, सो ट्राईएंगल ए बी सी इज़ एन इक्वीलेटरल ट्राईएंगल, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज करनी आ, जी सैकेंड एक्सरसाइज आ बेटा वो कट दी गई है सिलेबस चो, वो नहीं करनी, ये सिर्फ 5 सम आ, सिर्फ इन्ने ही करने, क्लीयर।